آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے پاس موضوع ہے رہائشی کنڈومینیمز کے خرید و فروخت کے معاہدے۔ اب جیسے ہی کوئی قانونی معاہدے کا لفظ سنتا ہے تو آنکھوں کے سامنے خشک اور بورنگ کاغذات کا ایک ڈھیر آ جاتا ہے، لیکن جب کوئی اپنی زندگی کی سب سے بڑی خریداری کر رہا ہو تو انہی کاغذات میں چھپی ایک ایک لائن لاکھوں کے فائدے یا نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ صرف اینٹ اور گارے سے بنی چار دیواریں خریدنے کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ ایک قانونی ڈھانچے، ایک کارپوریشن اور ایک کمیونٹی کی مشترکہ ذمہ داریوں میں حصہ دار بننے کا عمل ہے۔ آج ہم ایک خریدار کے سفر کا جائزہ لیں گے، اس لمحے سے جب وہ ایک چمکتا ہوا نیا کانڈو دیکھتا ہے، اس معاہدے کی بھول بھلیوں سے گزرتا ہے اور آخر میں چابیاں ہاتھ میں لیتا ہے۔ اور اس سفر میں 3 الگ الگ راستے ہیں۔ ہر راستے کے اپنے خطرات ہیں اور اپنے خزانے ہیں۔ اور یہ 3 راستے ہیں: بالکل نیا یا زیر تعمیر کانڈو خریدنا، ایک پرانا یعنی ریسیل کانڈو، اور ایک بہت ہی منفرد قسم جسے مشترکہ عناصر یا کامن ایلیمنٹس والا کانڈو کہتے ہیں۔ تو آئیے اس سفر پر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان پیچیدہ دستاویزات کے پیچھے چھپی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس چمک دھمک کی جو ہر ایک کو اپنی طرف کھینچتی ہے، ایک بالکل نیا کانڈو۔ نئے کانڈو کی خریداری میں ایک خاص جادو ہوتا ہے نا، سب کچھ نیا، چمکتا ہوا، اپنی پسند کی فنیشنگ اور یہ تصور کہ آپ اس گھر میں رہنے والے پہلے شخص ہوں گے۔ لیکن اس کا معاہدہ، جسے بلڈر کا معاہدہ کہتے ہیں، وہ کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہو سکتا۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، جب آپ ایک پرانا یا ریسیل کانڈو خریدتے ہیں تو ایک معیاری سٹینڈرڈ فارم استعمال ہوتا ہے جسے سب جانتے ہیں۔ لیکن نئے کانڈو کی دنیا میں کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ ہر بلڈر کا اپنا ذاتی معاہدہ ہوتا ہے جو اکثر 10، 20 یا اس سے بھی زیادہ صفحات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ معاہدہ بلڈر کے وکلا نے تیار کیا ہوتا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد خریدار کا نہیں بلکہ بلڈر کے مفادات کا تحفظ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خریدار ایک ایسے کھیل میں داخل ہو رہا ہے جہاں اصول پہلے سے ہی اس کے خلاف ہے۔ ایسی صورتحال میں خریدار کے پاس اپنے تحفظ کے لیے کیا اختیارات ہیں؟ میں نے 10 دن کی کولنگ آف پیریڈ کی اصطلاح سنی ہے، کیا یہ ایک طرح کا حفاظتی جال ہے؟ جی، یہ خریدار کا سب سے بڑا اور شاید واحد سب سے اہم حفاظتی جال ہے۔ اونٹاریو کے کنڈومینیم ایکٹ کے تحت جس لمحے خریدار معاہدے پر دستخط کرتا ہے اور اسے بلڈر کی طرف سے 2 اہم دستاویزات، ڈسکلوجر سٹیٹمنٹ اور کونڈو بائرز گائیڈ، موصول ہوتی ہیں، اس کے پاس پورے 10 دن ہوتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں وہ بغیر کوئی وجہ بتائے معاہدہ منسوخ کر سکتا ہے اور اپنی جمع کرائی ہوئی تمام رقم ایک ایک پیسہ واپس لے سکتا ہے۔ یہ 10 دن سوچنے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے ہیں۔ اس دوران ایک تجربہ کار ریئل اسٹیٹ وکیل سے اس معاہدے کا لفظ پر لفظ جائزہ کروانا انتہائی ضروری ہے۔ یہ جو ڈسکلوجر سٹیٹمنٹ ہے، یہ تو سننے میں ایسا لگتا ہے جیسے بلڈر نے 100 صفحات کا ایک پلندہ خریدار پر ڈال دیا اور کہا اب تمہاری ذمہ داری۔ ایک عام انسان اس میں چھپی اہم تفصیلات یا خطرے کی گھنٹیوں کو کیسے پہچانے؟ کیا کوئی ایسی سرخ جھنڈیاں ہیں جن پر خاص نظر رکھنی چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی دستاویز ہوتی ہے، لیکن اس کے 4 حصے ہیں جن میں اصل کہانی چھپی ہوتی ہے۔ پہلا ہے ڈیکلیریشن۔ یہ کانڈو کی پیدائش کا سرٹیفکیٹ ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ آپ کے یونٹ کی حدود کہاں ختم ہوتی ہیں اور مشترکہ جگہیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی کہ پوری بلڈنگ کے کل اخراجات میں آپ کا حصہ کتنے فیصد ہوگا، ٹھیک؟ بالکل۔ دوسرا حصہ ہے تفصیل یا ڈسکرپشن، جس میں پوری پراپرٹی کے نقشے اور منصوبے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو قوانین و ضوابط میں پالتو جانوروں جیسی چھوٹی چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ یہ تو بہت اہم ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس ایک بڑا کتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک پوری بلڈنگ میں صرف اس ایک اصول کی وجہ سے فلیٹ نہ خرید سکے۔ بالکل۔ تیسرا حصہ قوانین و ضوابط یعنی بائی لاز اور رولز کا ہوتا ہے، اور یہ اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس میں لکھا ہو سکتا ہے کہ آپ بالکونی میں باربیکیو کر سکتے ہیں یا نہیں، پالتو جانوروں کا وزن کتنا ہونا چاہیے، یا آپ اپنا یونٹ کرائے پر دے سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے طرز زندگی پر گہرا اثر ڈال سکتی ہیں۔ اور سب سے اہم، پیسوں کی بات۔ چوتھا حصہ بجٹ کا ہوگا۔ اس میں کیا خطرات چھپے ہو سکتے ہیں؟ بجٹ شاید سب سے اہم حصہ ہے۔
बिल्डर पहले साल के मुतवक्के अखराजात का एक तखमीना देता है, जिसकी बुनियाद पर आपकी माहाना फीस मुकर्रर होती है। कई बार बिल्डर्स जानबूझकर इस बजट को कम दिखाते हैं ताकि यूनिट्स ज़्यादा पुरकशिश लगें और जल्दी फरोख्त हों। और फिर होता यह है कि पहले साल के बाद जब असल मालकान की कॉन्डो कॉरपोरेशन कंट्रोल संभालती है, तो उन्हें पता चलता है कि फंड्स नाकाफ़ी हैं और माहाना फीस में 15 से 20% तक का इजाफा करना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा माली झटका हो सकता है। और अगर बिल्डर इन तफसीलात में कोई तब्दीली कर दे जो उसने पहले बताई थी, मसलन उसने एक शानदार स्विमिंग पूल का वादा किया था लेकिन बाद में उसे एक छोटे से पार्टी रूम से बदल दिया। यहाँ मादी तब्दीली या मटेरियल चेंज का तस्वुर सामने आता है। कानून कहता है कि अगर कोई ऐसी तब्दीली हो जो एक आम खरीदार के खरीदने या ना खरीदने के फैसले पर असरअंदाज हो सकती हो, तो बिल्डर को खरीदार को तहरीरी तौर पर मुत्तला करना होता है। इस इत्तला के बाद खरीदार को दोबारा 10 दिन का एक नया कूलिंग ऑफ पीरियड मिलता है कि वो चाहे तो मुआहदा मनसूख कर दे। स्विमिंग पूल का ना बनना यकीनन एक मादी तब्दीली है। ज़ेरे तामीर प्रोजेक्ट्स में ताख़ीर तो जैसे एक मामूल बन चुका है। मुआहदे में इस हवाले से खरीदार को क्या तहफ़्फ़ुज़ हासिल है? ताख़ीर के मुआवजे की बात करना बहुत ज़रूरी है। मुआहदे में कब्ज़े की कई तारीखें होती हैं, लेकिन सबसे अहम आउटसाइड तारीख है। अगर बिल्डर इस तारीख के बाद भी ताख़ीर करता है तो ख़रीदार मुआहदा ख़त्म कर सकता है। लेकिन अगर वो इंतज़ार करना चाहता है तो टेरियन वारंटी के तहत उसे ताख़ीर का मुआवजा मिल सकता है, जो $150 यौमिया और ज़्यादा से ज़्यादा $7,500 तक हो सकता है। मेरे एक क्लाइंट को बिल्डर ने 18 माह तक इंतज़ार करवाया। अगरचे $7,500 की रकम उसकी परेशानी का मुकम्मल अजाला नहीं करती, लेकिन ये जानना कि आपके पास कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है बहुत अहम है। ये शर्त मुआहदे में सिर्फ एक शिक़ नहीं बल्कि आपका हिफाजती जाल है। तो नए कॉन्डो का मुआहदा एक तरह से बिल्डर और खरीदार के दरमियान ताकत का खेल है। लेकिन जब आप एक रीसेल कॉन्डो खरीद रहे हो तो खेल बदल जाता है। अब आप एक फर्द से खरीद रहे हैं, लेकिन एक तीसरा खामोश किरदार भी इस कहानी में शामिल हो जाता है, कॉन्डो कॉरपोरेशन खुद। और इस किरदार को समझने के लिए एक बिल्कुल मुख्तलिफ दस्तावेज की जरूरत पड़ती है। आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया है। रीसेल कॉन्डो में सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। यहाँ एक मेयारी मायदा इस्तेमाल होता है, लेकिन उसकी कामयाबी या नाकामी का इन्हिसार एक वाहिद दस्तावेज पर होता है, जिसे स्टेटस सर्टिफिकेट कहते हैं। स्टेटस सर्टिफिकेट को इतना अहम क्यों समझा जाता है? ये तो बस कागजात का एक और पुलंदा लगता है। इसमें ऐसा क्या खास होता है? इसे सिर्फ कागजात का पुलंदा ना समझें, ये इस कॉन्डो कॉरपोरेशन की माली और कानूनी सेहत का एक्सरे भी है और मुस्तकबिल का माली जायचा भी। ये एक स्नैपशॉट है जो बताता है कि कॉरपोरेशन की माली हालत कैसी है, उसके रिजर्व फंड में कितना पैसा है, मतलब मुस्तकबिल की बड़ी मरम्मत जैसे छत या खिड़कियों की तब्दीली के लिए कितनी रकम जमा है, क्या कॉरपोरेशन पर कोई मुकदमा चल रहा है, और सबसे अहम, क्या मुस्तकबिल में कोई बड़े अखराजात या स्पेशल असेसमेंट्स मुतवक्के हैं। एक मिनट, स्पेशल असेसमेंट का क्या मतलब है? ये सुनने में ही खतरनाक लग रहा है। और ये है भी। फर्ज करें कि बिल्डिंग की छत को तब्दील करने की ज़रूरत है, जिस पर $5 लाख का खर्च आएगा, लेकिन कॉरपोरेशन के रिजर्व फंड में सिर्फ $2 लाख हैं। बाकी $3 लाख तमाम यूनिट मालिकान को अपनी जेब से अदा करने होंगे। इसे स्पेशल असेसमेंट कहते हैं। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहां रिजर्व फंड का जायजा ना लेने पर खरीदार को चंद माह बाद ही छत की तब्दीली के लिए $20,000 का बिल आ गया। ये सर्टिफिकेट आपको बताता है कि क्या आप एक माली तौर पर सेहतमंद कम्युनिटी में शामिल हो रहे हैं या एक डूबते हुए जहाज में। इसलिए कोई भी ऑफर देते वक्त हमेशा ये शर्त रखनी चाहिए कि ये सौदा तभी पक्का होगा जब हमारा वकील स्टेटस सर्टिफिकेट देखकर पूरी तरह तसल्ली कर ले। ये तो वाकई बहुत बहुत अहम मालूमात है। मुआहदे में और कौन सी मुनफरिद तफसीलात होती हैं जिन पर खरीदार को ध्यान देना चाहिए? चंद और अहम चीजें हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी की तफसील। इसमें सिर्फ यूनिट नंबर नहीं होता, बल्कि पार्किंग और लॉकर की तफसीलात भी शामिल होती हैं। यहाँ एक बहुत अहम फर्क समझना जरूरी है। क्या पार्किंग और लॉकर मुल्कियती यानी ओन्ड हैं या खुसूसी इस्तेमाल यानी एक्सक्लूसिव यूज के लिए? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार्किंग मुल्कियती है तो वो एक हकीकी असासा है जिसकी कीमत वक्त के साथ बढ़ सकती है और जिसे आप अलग से बेच भी सकते हैं। लेकिन खुसूसी इस्तेमाल वाली जगह सिर्फ एक सहूलत है जो यूनिट के साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल।
और ये फर्क आपकी प्रॉपर्टी की रीसेल वैल्यू पर लाखों का असर डाल सकता है। मुल्कियती पार्किंग आपकी जायदाद है, आप इसे किसी और को भी बेच या किराए पर दे सकते हैं। खुसूसी इस्तेमाल वाली जगह पर आपका सिर्फ इस्तेमाल का हक है, मिल्कियत का नहीं। दूसरी अहम चीज़ मुश्तरका अखराजात यानी माहाना फीस है। मुआहदे में वाज़े लिखा होता है कि फ़ीस कितनी है और इसमें क्या शामिल है। एक कम फीस हमेशा अच्छी बात नहीं होती। हो सकता है कि उसमें कुछ शामिल ना हो या रिजर्व फंड में बहुत कम पैसा जा रहा हो, जो मुस्तकबिल में खतरनाक साबित हो सकता है। ये तो एक मुकम्मल मालियाती तज्जिया है। अब इस तीसरी और दिलचस्प किस्म की तरफ आते हैं, मुश्तरका अनासिर या कॉमन एलिमेंट्स वाले कॉन्डो। ये मॉडल क्या है? ये एक हाइब्रिड मॉडल है जो अक्सर टाउन हाउस कम्युनिटीज़ में पाया जाता है। इसमें आप एक फ्री होल्ड घर के मालिक होते हैं जो एक मुंसलिक ज़मीन के पार्सल पर होता है, लेकिन इसके साथ ही आप कुछ मुश्तरका अनासिर जैसे सड़कें, पार्क, स्विमिंग पूल या कम्युनिटी सेंटर में भी हिस्सादार होते हैं। यहाँ रिवायती कॉन्डो की तरह यूनिट्स नहीं होते, सिर्फ आपका ज़ाती घर होता है और मुश्तरका सहूलियात होती हैं जिनकी देखभाल के लिए एक कॉन्डो कॉरपोरेशन मौजूद होती है। तो इसका मतलब है कि मुआहदा भी दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। ये तो पेचीदा लगता है। जी, ये थोड़ा पेचीदा है। मुआहदे में दो अलग अलग जायदाद की तफसीलात होती हैं, एक आपके फ्री होल्ड घर की और दूसरी उन मुश्तरका अनासिर वाले कॉन्डो कॉरपोरेशन में आपकी दिलचस्पी की। इसका मतलब है कि आपको दो किस्म के प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने पड़ सकते हैं और माहाना फीस सिर्फ उन मुश्तरका अनासिर की देखभाल के लिए होती है, आपके घर की बैरूनी मरम्मत के लिए नहीं। इसी तरह स्टेटस सर्टिफिकेट भी सिर्फ मुश्तरका अनासिर पर लागू होता है, आपके घर की हालत पर नहीं। तो हमने तीनों रास्ते देख लिए हैं। अब फर्ज करें कि खरीदार और बेचने वाले ने हाथ मिला लिया है, मुआहदा कबूल हो गया है। क्या ये कहानी का इख्तिताम है या इसके बाद भी इसमें कोई मोड़ आ सकता है? क्या मुआहदे में तब्दीली की जा सकती है? मुआहदा कबूल होना कहानी का इख्तिताम नहीं, बल्कि एक नए बाब का आगाज है। जी हाँ, इसमें तब्दीली की जा सकती है, लेकिन इसके लिए मखसूस कानूनी दस्तावेजात इस्तेमाल होती हैं। अगर मुआहदा कबूल होने के बाद दोनों फरीक यानी खरीदार और बेचने वाला मुआहदे की किसी शर्त जैसे कीमत, क्लोजिंग की तारीख या किसी और चीज़ को तब्दील करने पर राजी हों, तो एक तरमीम या अमेंडमेंट पर दस्तखत किए जाते हैं। ये दोनों की बाहमी रजामंदी से होता है। और उन शराइत का क्या जो मुआहदे में शुरू से ही शामिल होती हैं, जैसे फाइनेंसिंग हासिल करने की शर्त या होम इंस्पेक्शन की शर्त? उनके लिए दो अलग दस्तावेजात हैं। जब खरीदार कोई शर्त पूरी कर लेता है, मिसाल के तौर पर उसे बैंक से मॉर्गेज की मंजूरी मिल जाती है, तो वो बेचने वाले को शर्त की तकमील का नोटिस या नोटिस ऑफ फुलफिलमेंट देता है। इसका मतलब है, मैंने अपनी शर्त पूरी कर ली है, अब ये सौदा पक्का है और हम आगे बढ़ेंगे। और अगर खरीदार शर्त पूरी किए बगैर ही आगे बढ़ना चाहे, मिसाल के तौर पर आजकल मार्केट बहुत गर्म है और खरीदार होम इंस्पेक्शन की शर्त से दस्तबरदार होकर अपनी पेशकश को मजीद मजबूत बनाना चाहता है, इस सूरत में दस्तबरदारी या वेवर इस्तेमाल होता है। अगर मुआहदे में होम इंस्पेक्शन की शर्त थी, लेकिन खरीदार फैसला करता है कि उसे इंस्पेक्शन नहीं करवानी और वो इसके बगैर ही प्रॉपर्टी खरीदने को तैयार है, तो वो वेवर पर दस्तखत करता है। ये एक बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि इसका मतलब है कि शर्त पूरी तो नहीं हुई, लेकिन खरीदार उस शर्त पर इसरार करने के अपने हक से दस्तबरदार हो रहा है और तमाम खतरात को कबूल कर रहा है। ये एक स्ट्रैटेजिक इकदाम हो सकता है, लेकिन बहुत खतरनाक भी। तो खुलासा ये है कि कॉन्डोमिनियम की खरीदारी का मुआहदा सिर्फ एक खरीदो फरोख्त का कागज़ नहीं, बल्कि एक पेचीदा कानूनी और मालियाती कम्युनिटी में दाखिले का टिकट है। चाहे वो नया हो, रीसेल हो या मुश्तरका अनासिर वाला, हर एक की अपनी गहराइयाँ और मुमकिना खतरात हैं। बिल्कुल। कलीदी नुक्ता यह है कि हर शिक को समझना, हर दस्तावेज का गहराई से तज्जिया करना और सबसे बढ़कर एक तजुर्बाकार रियल एस्टेट वकील से पेशावराना मशवरा लेना इंतहाई ज़रूरी है। वकील की फीस एक खर्चा नहीं, बल्कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सरमायाकारी को महफूज बनाने के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। स्टेटस सर्टिफिकेट रीसेल के लिए और डिस्क्लोजर स्टेटमेंट नए कॉन्डो के लिए, इन जैसी दस्तावेजात को कभी नज़रअंदाज न करें। ये आपकी सरमायाकारी की हिफाजत की जमानत है।
سامعین کے لیے ایک آخری سوچ، یہ جاننے کے بعد کہ ایک بلڈر کا معاہدہ عام طور پر اسی کے حق میں ہوتا ہے، ایک خریدار کو اپنی حفاظت کے لیے اس معاہدے میں کون سی ایک ایسی شرط شامل کروانے کی کوشش کرنی چاہیے جو بظاہر چھوٹی لگے لیکن طویل مدتی تحفظ فراہم کر سکے؟